Now let us start the polar representation of complex polar representation of the complex number. How a complex number is represented on the polar coordinate in the polar form. Suppose let z is equal to x plus iota into y is a given complex number represented by this point P, right? And O is the origin. This is the y, imaginary y axis, imaginary y axis, and this is the real x axis. Let P be the any point. Let's make an angle theta with the x axis, which is real, and let r be the position vector. You can say position vector. R is the length magnitude of the OP. Magnitude of the OP, that is, this is equal to mod of the magnitude means इसका mod, जैसे हम लोगों ने इसमें लिखा था x z is equal to x plus iy iota into y, इसको रिप्रेजेंट करें एक पॉइंट P से, then this is the origin and z mod of z is equal to root x square plus y square. ये mod था इसका x और imaginary y एक्सिस का, यहाँ का पॉइंट था x y, where y is the lie on the imaginary y axis. ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये रियल y एक्सिस नहीं है, ये कैसा y एक्सिस है, imaginary y एक्सिस है. Similarly, r is equal to, ये z क्यों होगा, अच्छा अभी मान लीजिए let it is represented by r, okay, then एंगल इसको मान लीजिए A, राइट, एंगल POA is equal to theta. Then sin theta is equal to PA by R. Sin theta is equal to PA by R. This implies that PA is equal to R sin theta, right? Similarly, cos theta is equal to OA by R, and this implies that OA is equal to R cos theta. OA is equal to R cos theta, and OP is equal to R square sin square theta plus cos square theta. This is equal to R. R is the
मैग्नीट्यूड, वी कैन से, हम एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं R इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z, और ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। नाउ अब क्या करेंगे, x पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, OA was the x and this was the y, OA is equal to, यानी कि x is equal to आपको क्या मिल गया, r cos theta, this implies that x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta, right? Now putting this value in the original equation of the या given equation of the complex number, हमें क्या मिल गया, z is equal to r cos theta plus I into r sin theta, or you can write it r into cos theta plus iota into sin theta, right? Where r is the, r क्या है, r is the mod of z, r is the, ये देखिए mod of z, where r is equal to mod of z, इसीलिए हमने यहाँ mod of z लिखा, and theta is the argument of, थीटा क्या है, z का आर्गुमेंट है। दिस फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज नोन एज द पोलर फॉर्म, वेयर r इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, r क्या है, ये है मॉडुलस ऑफ द z है, z का मॉडुलस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे हम इसमें निकालते थे। इफ z is equal to ixy, इसको रिप्रेजेंट किया जाए तो दिस बिकम x, सपोज दिस पॉइंट इज p, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z, ये मॉडुलस था। तो r क्या है, मॉडुलस ऑफ द z। कैसे निकालेंगे मॉडुलस ऑफ द z, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये था मॉडुलस। तो दिस फॉर्म इज नोन एज द पोलर फॉर्म, इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, पोलर फॉर्म, राइट। अब क्लियर, यानी कि किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को, इफ एनी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, z is equal to x plus iota into y, this complex number can be represented by polar, in the polar form also। polar form क्या हो गया, z is equal to r into cos theta plus I sin theta, where r is the modulus of z, r is the modulus of z and theta भी is the argument of the z। थीटा आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इफ, कैसे, फिर से मैं रिवाइज कर दूं आर्गुमेंट के बारे में, कि इफ द पॉइंट लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन theta is equal to alpha, where alpha is the acute angle given by tan alpha is equal to imaginary z upon real। पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। इफ, यदि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है कोई पॉइंट, देन थीटा की वैल्यू क्या होगी, आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा, अब ये क्या हो जाएगी, पाई माइनस, सॉरी अल्फा, दिस इज इक्वल टू आर्गुमेंट, अब यहाँ आर्गुमेंट पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है
तब आर्गुमेंट क्या होगा यहाँ, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा, ये हम लोगों ने देखा था। एंड इफ पॉइंट लाई ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट देन आर्गुमेंट इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इफ वी वांट टू चेंज एनी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म, सबसे पहला काम क्या करना होगा, वी हैव टू फाइंड द आर। आर कैसे निकालेंगे, आर इज द पोजीशन वेक्टर, आर रिप्रेजेंट टू द पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जैसे दिस इज द पॉइंट पी, ये याद रखिए आप लोग वेक्टर में भी पढ़ेंगे, दिस इज द वेक्टर नोटेशन, ये वेक्टर नोटेशन भी है। आर इज द पोजीशन, आर को अगर वेक्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें तो आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी। तो आर क्या होता है, दिस रिप्रेजेंट टू द पोजीशन वेक्टर एंड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल टू आर के इक्वल हो जाएगा। और थीटा आर्गुमेंट निकालेंगे, इसका आर्गुमेंट हम लोग निकाल चुके हैं। और वी विल पुट द वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा इन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमें मिल जाएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आइए, सपोज मान लीजिए वन प्लस आई। क्वेश्चन इज राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। राइट the complex number complex number 1 plus I iota in polar form। क्या करना है हमें, दिस इज योर क्वेश्चन। पहला काम, लेट z इज इक्वल टू 1 minus I and we know that the z is equal to I sin theta cos theta plus I sin theta into R, right? ये बात समझ में आई। अब सबसे पहला काम का क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड एंड दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू √2। आर की वैल्यू क्या मिल गई हमें, √2 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, tan अल्फा निकाले, वी हैव टू पुट द आर्गुमेंट हियर। ऐसे भी आप कर सकते हैं, देखिए कि वी हैव टू पुट द आर्गुमेंट, आर की वैल्यू हमें मिल गई, अब आर्गुमेंट की वैल्यू निकालनी है। आर्गुमेंट इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ अक्यूट, इफ अल्फा इज द अक्यूट एंगल देन द tan अल्फा इज इक्वल टू z अपॉन ये 60 है रियल, and this is equal to simple, and this is equal to mod of minus 1 upon 1 that is equal to 1। अब tan अल्फा की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब दिस implies that अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4। अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब हमें ये अल्फा इज द अक्यूट एंगल, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, अल्फा इज द अक्यूट एंगल। अब मान ली, अभी हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द आर्गुमेंट, थीटा क्या है, थीटा कैसे निकालेंगे, ये हम देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एंड दिस, देखिए ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देखिए 1 माइनस, यानी कि दिस लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट।
this lie in the fourth quadrant, यहाँ पर कहीं लाई, और यहाँ पर थीटा आर्गुमेंट क्या होता है माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, ये हम लोग डिस्कस कर सकते। इसका मतलब ये हो गया दिस इम्प्लाइज दैट द आर्गुमेंट ऑफ z दैट इज थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, because alpha is equal to pi by 4, then argument of z theta is equal to minus pi by 4. Now put the value of argument theta and r in equation 2. In equation 2. Now putting the value of r and theta, that is argument of z in second, क्या मिलेगा हमें, we get z is equal to root 2 into cos minus pi by 4, cos minus pi by 4 plus I sin minus pi by 4. This is the polar form of the given complex number. ये बात समझ में आई, ये इजी है आपके लिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, z गिवन है, इसका आप मॉडुलस निकाल लेंगे। r कैसे निकालेंगे मॉडुलस, रियल पार्ट द स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट और स्क्वायर रूट ऑफ दैट। इसके बाद क्या निकालेंगे, acute angle given by alpha, tan alpha is equal to modulus of the imaginary z upon the real z, imaginary part upon real part, इसका modulus निकाल लेंगे, and this is equal to 1। ये मार्क निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, and alpha is equal to pi by 4, right? But the since अब तीसरा काम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि आर्गुमेंट कैसे नहीं मिलेगा, ये तो एक्यूट एंगल मिल गया, 1 माइनस आई किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, एंड दिस लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड यहाँ पर आर्गुमेंट क्या होगा माइनस अल्फा। इसका मतलब ये हो गया कि आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, पुट द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट एंड r in the general form of the polar form of the complex number में पुट कर देंगे, we will get the polar form of the given complex। ये easy method है, right? कम समय में आप तुरंत you can change। फिर तीसरा एक एग्जाम्पल और ले लिया जाए डिफरेंट टाइप का। मान लीजिए सपोज माइनस z इज इक्वल टू -3√2 प्लस 3 plus √2 3. Suppose this is a given complex number and we have to change in the polar form। ठीक, शॉर्टेस्ट मेथड जो हमने अभी लास्ट में बताया दैट मेथड यूज करेंगे, तो दिस इज द इजी मेथड। क्या करेंगे, सबसे पहले वी नो दैट polar form of z is equal to r into cos theta plus I into sin, right? हम जानते हैं कि पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to r cos theta into I sin theta, where r is the modulus of z and theta is the argument। Simple। Now r is equal to mod of z is equal to, इसका mod निकाल लेंगे, इसका mod क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट that is 18
plus square of the imaginary part, that is 18, is equal to 36 and square root of this one is equal to 6. ठीक, R हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? एक्यूट एंगल अल्फा given by tan alpha is equal to z upon real z। ये निकालेंगे तो tan alpha is equal to क्या मिल गया हमें? imaginary part, that is this one, mod of 3 root 2 upon 3 root 2 is equal to 1. This implies that alpha is equal to pi by 4. ये acute angle तो हमें मिल गया। Now we have to decide in which quadrant this given complex number lies. ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? यह लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट। And in the second quadrant, theta is equal to pi minus alpha. This was the argument. ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट हमें मिला था वो क्या मिला था? pi minus alpha, where alpha is the acute angle given by tan alpha. इसका मतलब the argument of z क्या मिल जाएगा हमें? pi minus alpha is equal to pi minus pi by 4 is equal to 3 pi by 4। अब हमें क्या मिल गया? थीटा, ये आर्गुमेंट मिल गया यहाँ से, और यहाँ से हमें क्या मिल गया? आर की वैल्यू मिल गई, राइट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r and theta, that is here ब्रैकेट में हम लिख दें आर्गुमेंट ऑफ z इन पोलर फॉर्म in second we get क्या मिल जाएगा हमें? z is equal to r is 6 into cos थीटा, थीटा आर्गुमेंट कितना मिला हमें? 3 पाई बाई 4, यानी कि cos 3 पाई बाई 4 प्लस i sin 3 पाई बाई, ये हमें क्या मिल गया? दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स, राइट। तो किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम फिर से मैं रिवाइज कर दूं, कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप r की वैल्यू निकालेंगे, एंड r क्या है? इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन, उसका पोजीशन वेक्टर है। r इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि r इज द मॉडुलस ऑफ द z, इसका मॉडुलस है, क्योंकि अभी पोजीशन वेक्टर आप नहीं जानते हैं, आप वेक्टर आपने अभी नहीं, ये चैप्टर अभी आप नहीं पढ़ रहे, इसलिए आप इसे ये समझ के चलिए कि r इज इक्वल टू क्या है? मॉडुलस ऑफ द z, एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ द z। तो मॉडुलस ऑफ द z निकाल लेंगे, देन एक्यूट एंगल tan गिवन बाय द tan अल्फा निकाल लेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू इमेजिनरी z अपॉन द रियल z, जो भी निकला। इसके बाद सबसे पहला हमें क्या करना है? वी हैव टू सी कि वेदर इन विच क्वाड्रेंट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाई। जिस क्वाड्रेंट में, यदि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो यहाँ पर आर्गुमेंट क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू अल्फा। यदि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो यहाँ पर आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा। यदि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो माइनस पाई माइनस अल्फा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो दिस इज इक्वल टू माइनस अल्फा।
थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू ये एंड थीटा इज इक्वल टू माइनस, राइट। एंड यहाँ से हम आर्गुमेंट निकाल लेंगे, ये तो हमें एक्यूट एंगल मिल गया, यहाँ से हम आर्गुमेंट निकालेंगे एंड वी विल पुट द वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा इन द स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म। अब हमें पोलर इक्वेशन मिल गया। इस टाइप से आप अपने बुक से क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सपोज एक और डिफरेंट टाइप का है कि राइट -1 -i in polar form, write the complex number z is equal to -1 -i in polar form। अब मान लीजिए इसे हमें चेंज करना है पोलर फॉर्म, क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, z द गिवन यानी कि द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to -1 -i, right? We know that the polar form of the complex number, polar, ये सब आपको लिखना होगा, polar form of z is given by z is equal to r into cos theta प्लस i sin थीटा, ये आप ऐसे लिखेंगे, क्योंकि कभी कभी हम लोग होता है कि हम लोग मुंह से बोल देते हैं और डायरेक्ट करते चले जाते हैं, तो आपको लिखना होगा इन प्रॉपर वे, ठीक है। टू वेयर r इज द मॉडुलस ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड थीटा इज द आर्गुमेंट, राइट। सबसे पहले r कैसे निकालेंगे, r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज 1 एंड दिस इज इक्वल टू √2, ठीक, ये मिल गया हमें। एंड इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप हम लोग क्या करते हैं, द एक्यूट एंगल अल्फा गिवन बाय tan अल्फा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z अपॉन रियल पार्ट ऑफ द एंड मॉड, इससे निकाल लेंगे रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z अपॉन रियल पार्ट ऑफ द z, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू, क्या मिल गया हमें, 1/1 दैट इज 1, imaginary part of the z 1 that is -1 upon the real part of the z -1 and mod of that, this is equal to 1 and this implies that alpha is equal to pi/2। ये अल्फा तो हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द आर्गुमेंट गिवन बाय थीटा, कैसे, अब यहाँ इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, इन विच क्वाड्रेंट दिस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट बिकॉज द रियल पार्ट दिस इज, ये भी नेगेटिव है और इमेजिनरी वाई एक्सिस भी -1, तो अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है इसका मतलब यहाँ पर आर्गुमेंट क्या होगा, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, ये था, एंड अल्फा हमें दिया हुआ है। अब यहाँ लिखेंगे द आर्गुमेंट
of z is equal to minus of pi minus alpha is equal to minus of pi minus alpha. Pi minus alpha is pi by 4 is equal to minus 3 pi by 3 pi by 4. अब हमें आर्गुमेंट थीटा या आर्गुमेंट ऑफ z क्या मिल गया, minus 3 pi by 4. Now putting the value of r theta and r in general form of complex number, that is polar form में 2 में, putting value of r and theta, that is argument of z in 2, क्या मिल जाएगा हमें, z is equal to root 2 into cos minus 3 pi by 4 plus I sin minus 3 pi by, this is the polar form of being complex. इस टाइप से आप प्रैक्टिस कर लेंगे. दिस इज द शॉर्ट फॉर्म. ये बात समझ में आई. इसे आप तमाम सारे क्वेश्चन आप डिफरेंट बुक से आप ट्राई करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे. राइट.